Namaskar. Good morning, all the members, students. We welcome you on behalf of Pune branch of WRC as well as Pune Vikasa. Today is our fourth day on yoga session, Yoga Aradhana. Today we are going to learn from Pritesh Keleji on the topic of overcoming operational risks and how to live a healthy life. I again welcome Pritesh Ji Lad. Good morning, Pritesh Ji Lad. Namaste. Namaste. We look forward to hear from you. Yesterday, we have completed three sessions. That is, first one was meditation. Second one was on Surya Namaskar. Third was on uh, living. Third was on how to overcome operational risk and get toned physique. Was the third session. Today we are going to go through on the fourth session, and we look forward to hear from you. So I request Pritesh Jilad to take charge of the session. I request all the members to please join along with your family members also, so that we can reach to maximum participants with the limited resources we have. Also, I request all of you to please regularly practice the asanas, the pranayam, which has been told by Pritesh ji. And if you have any queries, please do write in comment box so that we can ask at the end of the session to Pritesh ji, and we can get answers. So with this, I hand over the session to Pritesh ji Lad. Over to you, Pritesh ji. Thank you, Abhishek ji. First of all, I would like to thanks ICI Pune that they have created a platform to reach maximum people out there in the country as well as on the globe. But our maximum participants are from Pune branch. I am happy with the number those are attending. Since we were doing this program for last 5 years and we were able to connect with 50 max 100 people through physical shivers of yoga every year, International Yoga Day. So I would like to mention most happiest moment of this year that due to corona we are blessed with the corona that we are reaching to maximum people by internet as well as we are saving our time in traveling to reach the destination of Shivir as well as we are saving lots of energy which we are directly utilizing for the session and our enhancement of health. So happy celebration of Yoga International Day month. So we'll be having 21st of June as a International Yoga Day and June month as a International Yoga month. So we'll start with the session with prayer. Om Bhurvasvaha
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। आज ऑक्यूपेशनल हजार्ड मैनेजमेंट, ऑक्यूपेशनल रिस्क मैनेजमेंट, टोन फिजिक्स के ऊपर हम कवर करने वाले हैं लगभग 20 पॉइंट प्रोग्राम। इसमें आपको योग, प्राणायाम, आसन, सूक्ष्म व्यायाम के साथ साथ घरेलू उपचार, आयुर्वेदिक औषधियां और थोड़ा सा एक्यूप्रेशर और पंचकर्म की कुछ विशेष क्रियाएं आपको हम संप्रेषित करेंगे, जिससे कि आपका जीवन ऑक्यूपेशनल हजार्ड से मुक्त हो जाएगा और आप स्वस्थ जीवन के अधिकारी बनोगे। सबसे पहले हम प्राणायाम से शुरू करते हैं। 5 प्राणायाम, साथ में 10 आसन, योगिक जॉगिंग के लगभग 3 अभ्यास। आज आपसे शवासन भी करवाएंगे और आपको यूनिवर्सल डिवाइन पावर के साथ ट्यून भी कराएंगे और हम सब मिलके इस राष्ट्र को विश्व गुरु बनाने के लिए प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। लंबे गहरे श्वास के साथ अपने अंदर की यात्रा शुरू करते हैं। लंबे लंबे श्वास लेते हैं आंखें बंद करते हुए और एकाकार हो जाते हैं अपने श्वासों के साथ। जैसे जैसे श्वास अंदर आती है तो संकल्प के साथ श्वासों को अंदर भरना है। अनंत ब्रह्मांड से ईश्वरीय कृपा हमारे ऊपर बरस रही है। उस कृपा को हम हमारे रोम रोम में, हर एक अंग में ओतप्रोत कर रहे हैं। इस दिव्यता को अनुभव करते हैं कि ईश्वर सदा ही हमारे ऊपर कृपा करता है और जब हम उसको संकल्प के साथ ग्रहण करते हैं तो उसकी अनुभूति अलग होती है। लंबे लंबे श्वास लेते हैं, लंबे लंबे श्वास छोड़ते हैं। जिनको रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम नहीं है वो तीव्र गति से कर सकते हैं। साथ ही साथ हार्ट, हाई बीपी की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये विशेष सावधानी रखनी है। तो साधकों, हमारे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आती है और उन कठिनाइयों को हमें पार करते करते योग साधना में आगे चलते रहना जरूरी होता है, ताकि हम हमारे जीवन में शरीर के माध्यम से जीवन का आनंद ले सके, साथ ही साथ जीवन के उद्देश्यों को पूर्ण कर सके। लंबे लंबे श्वासों के साथ संकल्प करते हैं, ब्रह्मांड की सारी शुभ शक्तियां मेरे अंदर प्रविष्ट हो रही है, प्रविष्ट हो रही है, हो रही है, हो चुकी है। इस दिव्य भाव के साथ, श्रद्धा, आस्था, निष्ठा, समर्पण, संकल्प के साथ, जागरूकता के साथ
आप हर पल इसका अनुभव कर पाएंगे कि दिव्य शक्तियां हमारे अंदर ओतप्रोत हो रही है, हो चुकी है। भस्त्रिका प्राणायाम के माध्यम से श्वासों की बीमारियां, साथ ही साथ खून की बीमारियां पूरी तरह से ठीक हो जाती है। त्वचा के विकार भी ठीक हो जाते हैं। मन एकाग्र होना शुरू हो जाता है। मन की 5 अवस्थाएं होती है: क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, एकाग्र और निरुद्ध अवस्था। तो योग प्राणायाम करने के लिए एकाग्र और निरुद्ध अवस्था की आवश्यकता होती है। क्षिप्त, विक्षिप्त और मूढ़ अवस्था के साधक योग में क्रांति नहीं कर पाते, योग में आगे नहीं बढ़ पाते। और क्षिप्त, विक्षिप्त और मूढ़ अवस्था से पार करने के लिए प्राथमिक रूप में ऐसे साधकों को भस्त्रिका प्राणायाम ज्यादा देर करने तक लाभ होता है। और जो बुद्धिमान लोग होते हैं, जिनका मन अच्छे से एकाग्र होता है, वो निरुद्ध अवस्था में पहुंच जाते हैं ये भस्त्रिका प्राणायाम से। तो अलग अलग स्तर के योगियों के लिए, महायोगियों के लिए, साधकों के लिए, रोगियों के लिए यही प्राणायाम बड़ा कारगर साबित होता है, जिससे कि उनके लाभ के स्तर अलग अलग हो जाते हैं। इसलिए ये सभी के लिए आवश्यक है, उपयुक्त है, उपकारी है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम के बाद हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। आप 1 घंटे के लिए पूरी एकाग्रता से सुनते रहिए, करते रहिए और पूरी तरह से जीवन में उसको उतारने का संकल्प कीजिए। हम आपको 1 घंटे में जितना ज्यादा देने की कोशिश करेंगे, उतना ही आप ग्रहण करने की कोशिश करेंगे और इस देश को हम आगे लेके जाने के लिए एक सहयोग से प्रयास करेंगे। ओम सहनावतु सनो भुनक्तु। हम साधक और शिक्षक दोनों मिलके इस देश का भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। यही है सोशल इंजीनियरिंग। और इस सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से हम आत्म उद्धार से राष्ट्र उद्धार तक का अभियान चला रहे हैं। इसमें आप सम्मिलित हो रहे हैं और आपका खुद का जीवन और राष्ट्र की संभावनाओं को हम विकसित कर रहे हैं इस संकल्प के साथ। कपालभाति प्राणायाम हर एक सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाते हैं। एक हाथ पेट के ऊपर, जो नए साधक है उनके लिए, एक हाथ नासिका के सामने, और टेस्ट करते रहे कि अपना श्वास तभी छूट रहा है जब पेट अंदर जा रहा है। ये तो एक तरीका हो गया कपालभाति प्राणायाम करने का, विधि समझाने का। एक्सप्लेनेशन ऑफ मेथोडोलॉजी हैज डिफरेंट टाइप्स। फर्स्ट मेथोडोलॉजी इज विथ बोथ द हैंड्स। आप एक हाथ पेट के ऊपर रख सकते हैं, दूसरा हाथ नासिका के सामने। दूसरा एक मेथोडोलॉजी का एक्सप्लेनेशन टाइप होता है, वो है, आप ऐसे समझिए, फॉर एग्जाम्पल आपके सामने एक मोमबत्ती रखी है। ये जादू की मोमबत्ती है जो बार बार इग्नाइट हो जाती है, बार बार ये ज्वलित हो जाती है। तो जब आप नासिका से श्वासों को बाहर प्रयास के साथ उत्सर्जित करेंगे एक झटके के साथ, तो वो बुझ जाएगी। और जब आपके पेट के अंदर और फेफड़ों के अंदर श्वास अपने आप जाएगा, तो वो फिर से जल जाएगी और फिर से जब आप श्वासों को उत्सर्जित करेंगे बुझ जाएगी। तो ये जादुई मोमबत्ती है, बार बार जलती रहेगी, बुझती रहेगी। तो ऐसे भाव से आप कर सकते हैं इसको, आपका मेथोडोलॉजी इससे करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि मैंने कहा था कि 5 पैरामीटर्स के ऊपर हमने योग साधना को करना होता है। विधि, समय, संकल्प, सिद्धि और सावधानी के साथ जब हम प्राणायाम करते हैं, जीवन के विविध कामों को हम करते हैं, तो यश हम जरूर पाते हैं। और जब इस विधि, समय, संकल्प, सिद्धि, सावधानी को
मन की एकाग्रता या तो निरुद्धता का साथ मिल जाए तो यश तो फिर कारगर साबित होता है। जीवन में चमत्कारिक काम हम कर जाते हैं, जैसे कि परम पूज्य स्वामी जी ने प्रत्यक्ष रूप से 20 करोड़ लोगों को योग प्राणायाम सिखाया है। ये केवल योग शक्ति का परिणाम है। वैसे ही आप आपके जीवन में एक ऊंचाई को छू सकते हो अगर आप प्राणायाम करें, व्यायाम करें, आसन करें, मन को एकाग्र निरुद्ध बनाने का प्रयास करें। क्योंकि मराठी में ऐसी एक कहावत है, मन करारे प्रसन्न सार सिद्धीचे कारण। जब हम मन को प्रसन्न कर लेते हैं, एकाग्र कर लेते हैं, निरुद्ध कर लेते हैं, तो जीवन में सारे सुख हमें प्राप्त होते हैं और कठिनाइयों से हम पार चले जाते हैं। क्योंकि ये मन ही होता है जो बार बार विचलित होता है और हमें भटकाते रहता है। इसीलिए इसको नियंत्रण करने के लिए योग साधना आवश्यक होती है। कपालभाति प्राणायाम के बाद हम अगला प्राणायाम करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। दाहिना हाथ ऊपर उठाते हैं, दाहिने हाथ के दाहिने अंगूठे से दाहिनी नासिका बंद करते हैं, बाईं तरफ से श्वास अंदर भरते हैं, विपरीत दिशा से, मतलब बाएं से लिया और दाहिने से छोड़ा, दाहिने से लिया, बाएं से छोड़ा। ये एक आवर्तन पूरा हुआ। ऐसे बार बार लगभग 10 सेकंड में आप एक आवर्तन पूरा कर पाओगे। 2.5 सेकंड लेने के लिए, 2.5 सेकंड छोड़ने के लिए। बाएं से 2.5 सेकंड में लिया, दाहिने से 2.5 सेकंड में छोड़ा, फिर दाहिने से 2.5 सेकंड में लिया, बाएं से 2.5 सेकंड में छोड़ा। लगभग 10 सेकंड में एक सर्कल, एक चक्र, एक आवर्तन आप पूरा कर पाते हैं। तो ऐसे 1 मिनट में लगभग आप 6 आवर्तन पूरे कर सकते हो। तो 5 मिनट में 30, 15 मिनट में 90, ऐसे हर दिन 90 आवर्तन चक्र आपको पूरे करने हैं, ताकि आपको योग की शक्ति का अनुभव हो, आपके शरीर की नाड़ियां शुद्ध हो जाए, मन एकाग्र हो जाए, वात विकारों पर नियंत्रण प्रस्थापित हो जाए। साथ ही साथ राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन, लॉजिकल ब्रेन और ह्यूमरस ब्रेन, इसके अंदर सिंक्रोनाइजेशन हो जाए। लेफ्ट साइड की बॉडी, राइट साइड की बॉडी, दाया हाथ बायां हाथ, दाहिना पांव बायां पांव, ऐसे दोनों साइड का जो शरीर होता है, इसके अंदर जब डिवाइन सिंक्रोनाइजेशन हो जाता है तो बड़े अद्भुत गति से हम काम कर पाते हैं और बड़े अच्छे तरह से हम कामों को समझ पाते हैं, सुलझा पाते हैं। तो ऐसे मन की शक्तियों को एकाग्र करते हुए अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। बाएं से लिया, दाएं से छोड़ा, दाएं से लिया, बाएं से छोड़ा। एक बार मराठी में बोलते हैं, डावीकडून श्वास घेतला, उजवीकडून सोडला, उजवीकडून घेतला, डावीकडून सोडला। बऱ्याच वेळेला मराठी लोकांना दाया बाया समजत नाही, म्हणून मराठीत सांगण्याचा हा प्रयत्न केलेला आहे। तर सुरुवात करताना कधीही अनुलोम विलोम प्राणायामाची उजव्या हाताचा उजवा अंगठा उजव्या नासिकेवरती ठेवून डाव्या बाजूने श्वास घेऊन उजवीकडून सोडायचा, उजवीकडून घेऊन डावीकडे सोडायचा। अशा पद्धतीने एक एक आवर्तन पुढे करत अनुलोम विलोम प्राणायामाचे 90 आवर्तन आपल्याला पूर्ण करायचे। You have to complete 90 circles of Anulom Vilom Pranayama in single sitting by growing it in a ascending order। पहले एक दिन में 2 से 3 मिनट कर ले, फिर बाद में 5 मिनट, फिर 7 मिनट, 10 मिनट, फिर 12-15 मिनट तक हम पहुंच सकते हैं। कोई जबरदस्ती तो है नहीं, हम अपने शरीर के ऊपर नियंत्रण पाने की प्रक्रिया जो होती है वो तो ऐसे ही धीरे धीरे करनी होती है। इसलिए आप सभी योग का अभ्यास बड़े आराम से कर सके और जीवन में इसका लाभ पा सके, इसके लिए जरूरी है निरंतरता। पतंजलि योग सूत्र में एक सूत्र आता है,
सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। इसका मतलब होता है कि आप जीवन में जब साधना करें तो निरंतरता से करें। एक दिन करें, 2 दिन छोड़ दे, 2 दिन करें, 4 दिन छोड़ दे, ऐसे नहीं करना है। लगातार हर दिन करना है। आपने संकल्प करना है कि मैं मेरे स्वास्थ्य के प्रति 1 से 1.5 घंटा निकालूंगा, अपने समस्त क्षमताओं को विकसित करूंगा। हमें हमारी 5 तरह की क्षमताएं होती है, उनको विकसित करना होता है। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आत्मिक और भावनिक, ऐसे 5 क्षमताओं को हम विकसित कर पाए, इसी में जीवन की सार्थकता है। और हमारा कर्मयोग तभी सफल हो पाएगा जब विकसित क्षमताओं से हम सब काम कर पाए। तो हम आगे बढ़ जाते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम के बाद में हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम। 1 घंटे का हमारा सेशन है। इसको जब हम शिविर लगाते हैं तो 1.5, 2, 2.5, 3 घंटे तक शिविर चलता है। अभी हमें लिमिटेड टाइम है, इसलिए हमारे सेशन को बड़ी गति से आगे लेके जाना पड़ रहा है। अन्यथा हम ये प्राणायाम जो होते हैं ये 15-15 मिनट करवा के लेते हैं। आप सेशन पूरा होने के बाद या तो सोमवार से लेके शुक्रवार तक इसको 15-15 मिनट के राउंड कर सकते हैं और इसके लाभ की अनुभूति ले सकते हैं। अनुलोम प्राणायाम के बाद भ्रामरी और उद्गीत का अभ्यास करते हैं। पेन नोटपैड अपना साथ में रखिए। कुछ टिप्स आपको बोलेंगे, आप उसको सुनिए, लिखिए, आचरण में लाइए। बार बार यूट्यूब की ये वीडियो आपको देखने का वक्त होगा नहीं होगा, इसलिए आज जो है अभी इस शिक्षण नोट्स बनाते रहिए। नोट्स देखने के लिए 1 से 2 मिनट लग जाते हैं, यूट्यूब की वीडियो सुनने के लिए आपको 1 घंटा लग जाता है। इससे अच्छा है कि आप अपनी नोटपैड और पेन लेके बैठा करो। आपको जो अच्छा लगे, जो हितकर लगे वो लिखा करो और आचरण में लाया करो, ताकि आपके जीवन में अच्छे से अच्छा परिवर्तन हो और जीवन आपका सफल हो सके। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि YouTube में है और ये संरक्षित है, कभी भी देख सकते हैं। इस भाव में आप आके इसको ना देखें। आप ऐसा समझे कि ये YouTube की वीडियो आपको बाद में देखने के लिए टाइम मिले या नहीं मिले पता नहीं, और नोट्स तो 1 ही मिनट में हम देख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं। इसलिए पेन नोटपैड लेके बैठे और नोट्स बनाते रहे, जो आपको लगे आचरण में लाने का संकल्प करते रहे। अनुलोम विलोम प्राणायाम के बाद भ्रामरी प्राणायाम। दोनों हाथों की तर्जनी माथे के ऊपर, 3 उंगलियां बंद आंखों के ऊपर, अंगूठे से दोनों कान बंद, मुंह बंद रखते हुए नासिका से भ्रमर की तरफ ओम का उच्चारण करेंगे। ऐसे 2 से 3 बार तक भ्रामरी प्राणायाम करने के बाद आंखें बंद रखते हुए दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में घुटनों के ऊपर रख देते हैं। हाथ के तलिए आकाश की ओर लंबा गहरा श्वास लेते हुए अगला प्राणायाम उद्गीत प्राणायाम।
श्वास के साथ एकाकार होते हुए कुछ क्षणों के लिए ध्यान में उतर जाते हैं, गहराई से अंदर उतरते हैं, अपने आप के साथ एकाकार होते हैं। सर्वव्यापक सर्वंतर्यामी परमपिता परमेश्वर का एक अंश हमारे भीतर है, हमारा आत्मा। और उस आत्मा की दिशा में जो भी हम प्रयास करते हैं पहुंचने का, वही जीवन में सार्थकता प्रदान करता है। इसी सार्थकता को प्राप्त करने के लिए कुछ क्षणों के लिए ध्यान कर लेते हैं। आओ श्वासों के साथ एकाकार हो जाते हैं। श्वास सहजता से आ रहा है, सहजता से जा रहा है। हर श्वास के साथ ओंकार का उच्चारण मनी मन में हो रहा है। ओंकार का जाप करते करते दोनों भवों के बीच में आज्ञा चक्र में, या तो किसी भी चक्र पर हो, हृदय चक्र हो, अनाहत चक्र जिसे कहते हैं, या तो फिर गले में विशुद्ध चक्र होता है, नाभि के पास मणिपुर चक्र होता है, मूलाधार चक्र होता है, गुदा के पास, जो आपको चक्र ठीक लगे उस चक्र के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं। या तो सहस्रार चक्र जो सिर के सिरे में होता है, वहीं पे भी हम हमारा ध्यान एकाग्र कर सकते हैं और श्वासों के साथ ओंकार का जाप कर सकते हैं और अपने आप के साथ लीन हो जाते हैं कुछ क्षणों के लिए। निर्विचार अवस्था में प्रवेश करने का प्रयास। ध्याने ध्याने स्वरूपता तस्य वाचकं प्रणव तज्जपस्तदर्थ भावनम। सर्वव्यापक सर्वंतर्यामी परमपिता परमेश्वर जो है वही हमारे अंदर है, जो ब्रह्मांड में है वही हमारे पिंड में है, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। और उस आत्मा के साथ जब हम एकाकार होते हैं तो यूनिवर्सल पावर के साथ कनेक्ट कर पाते हैं अपने आप को। और जब हम यूनिवर्सल पावर के साथ हमें अपने आप को कनेक्ट करना आ जाता है तो यूनिवर्सल डिवाइन पावर्स हमारे अंदर प्रवाहित होने लगती है। ईश्वरीय कार्य हमारे माध्यम से घटित होने लगता है। ईश्वर हमें अपना माध्यम बना लेता है। शांति के साथ, एकाग्रता के साथ निरुद्ध अवस्था में प्रवेश करते हैं। दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रगड़ते हैं। ध्यान का विसर्जन करते हैं। दोनों हाथों के ऊपर हाथ की गरम गरम हथेलियां, संपूर्ण चेहरे को ऊर्जा का स्रोत देते हैं। पहला सत्र हमारा जो है प्राणायाम का सत्र पूरा हुआ। आधा घंटे का अपना अभी व्यायाम का सत्र करेंगे, जिसमें सूक्ष्म व्यायाम भी करेंगे, जिसमें योगासन भी करेंगे और योगी जॉगिंग के 2-3 अभ्यास भी करेंगे। 20 पॉइंट प्रोग्राम आपको आज हम दे रहे हैं। आज हम कवर करने वाले हैं रीढ़ की हड्डी के सारे विकार कैसे दूर करें। कल हमने पेट के विकारों के लिए आसन, प्राणायाम, घरेलू उपचार ऐसे सब आपको कहे थे। आज हम आपको बताने वाले हैं रीढ़ की हड्डी के विकारों को कैसे ठीक करें, स्पाइनल कॉर्ड को हम कैसे तंदुरुस्त रख सके, पेन फ्री बॉडी कैसे प्राप्त करें, टोन फिजिक कैसे प्राप्त करें। तो इसको कंसंट्रेट करते हैं अपनी रीढ़ की हड्डी के ऊपर। सबसे पहले हम जाएंगे गर्दन के C1 to C7 सेक्शन में। तो C1 to C7 सेक्शन को हमें सर्वाइकल जिसको बोलते हैं, सर्वाइकल 1, सर्वाइकल 2, ऐसे जो मनके होते हैं उनको हम तंदुरुस्त बनाने के लिए कुछ सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। सबसे पहला उंगलियों के लिए, जब आप उंगलियों को इस तरह से व्यायाम देते हैं तो C7 तक, C7 से C1 तक और C1 से C7 तक व्यायाम मिलता है। बाद में दूसरा अभ्यास, आधे में उंगलियों को मोड़ते हैं। फिर तीसरा अभ्यास,
उंगलियों को ऐसे गोल घुमाते हैं, अंगूठा बंद रखते हुए, अंगूठा अंदर ऐसे लेके मुट्ठी बंद करते हैं। फिर बाहर की ओर एंटी क्लॉकवाइज। फिर अगला अभ्यास, अंगूठा अंदर, उंगलियां बंद, दोनों मुट्ठियां बंद रखते हुए, कोहनियां सीधी रखते हुए हम अगला सूक्ष्म व्यायाम कर रहे हैं। क्लॉकवाइज के बाद एंटी क्लॉकवाइज। आप महसूस करेंगे आपके C1 to C7 सेक्शन में कुछ पुष्टि का अनुभव हो रहा है, शक्ति का अनुभव हो रहा है, साथ ही साथ हाथ के स्नायु मंडल को भी व्यायाम मिल रहा है। अगला अभ्यास ऊपर नीचे करते हैं, कलाइयों के लिए अभ्यास। अगला अभ्यास, अभी उसके आगे कोहनियों के लिए अभ्यास। उंगलियां, कोहनियां, कलाइया और फिर कंधे और साथ ही साथ गर्दन के मणकों को हम स्वस्थ तंदुरुस्त बनाते हैं। अगला अभ्यास, दोनों हाथों को कंधे के ऊपर रख देते हैं, सामने से कोहनियां टच करते हैं, एक दूसरे को कोहनियां स्पर्श करते हुए फिर दूर लेके जाते हैं, लंबा सा शून्य बनाते हैं, बड़ा सा शून्य बनाते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यही अभ्यास विपरीत दिशा से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। फिर अगला अभ्यास कंधों के लिए। दिन भर प्रोफेशनल्स कुर्सी में बैठे होते हैं, फिर उनके गर्दन में पेन होना शुरू हो जाता है, रीढ़ की हड्डी में पेन होना शुरू हो जाता है। तो अगर ये अभ्यास आप हर दिन करोगे तो रीढ़ की हड्डी का दर्द, गर्दन का दर्द पूरा निकल जाएगा और आप चुस्ती मस्ती के साथ, आनंद के साथ अपना काम कर पाओगे। अगला अभ्यास, दोनों हाथ की हथेलियां कलाइयों के आगे से इंटरलॉक करते हुए, गर्दन सीधी रखते हुए एक तरफ खिंचाओ, फिर दूसरी तरफ खिंचाओ, दाहिने तरफ, फिर बाएं तरफ, ऐसे। फिर आगे से दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक करते हैं, सिर के पीछे लेके जाते हैं, लंबा गहरा श्वास लेते हैं, अंदर श्वासों को रोक कर अंतक कुंभक करते हुए हाथ की ओर से सिर की ओर, सिर की ओर से हाथ की ओर प्रेशर देते हैं। फिर एक एक हाथ से दाहिने से बाएं से करेंगे। फिर अगला अभ्यास, सामने से। ऑक्यूपेशनल हजार्ड में आंखों के लिए भी व्यायाम आवश्यक है, क्योंकि कंप्यूटर के स्क्रीन के सामने जब हम काम करते हैं तो बार बार हार्मफुल रेज हमारे आंखों के अंदर जाते हैं, तो उनको भी हमें नियंत्रित करना होता है। इसलिए आंखों को व्यायाम करके सक्षम बनाएं, क्लॉकवाइज घुमाएं 5 से 10 बार, फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं 5 से 10 बार। फिर अगला अभ्यास, ऊपर से नीचे घुमाएं वर्टिकल डायरेक्शन में, लंबी सीधी रेखा में, और फिर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भूतल समांतर रेखा में हम अपनी आंखों को घुमाएंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और फिर क्रॉस डायरेक्शन, बाई तरफ ऊपर, दाहिनी तरफ नीचे, बाई तरफ ऊपर, दाहिनी तरफ नीचे, क्रॉस डायरेक्शन में। यही अभ्यास दाहिनी तरफ से ऊपर और बाई तरफ से नीचे तक के लिए आंखों के लिए अभ्यास, आंखों का सूक्ष्म व्यायाम। ये सूक्ष्म व्यायाम आंखों का जब से मैं करने लगा हूं, मेरे स्पेक्स का नंबर स्टेबल हो चुका है, अभी बढ़ नहीं रहा है। तो आप भी अपने आंखों को स्वस्थ रखने के लिए अभ्यास कर सकते हो। अगला अभ्यास जो है, दूर देखे और पास में अपने नासिका के ऊपर नासिका अगर करते हैं दृष्टि, और दूर उसको देखते हुए फिर पास में लेके आ जाते हैं, दृष्टि को लंबे लेते हैं,
और फिर पास में लेके जाते हैं, लंबे और पास में। और फिर आंखों को आज्ञा चक्र में खोलते हुए एकाग्र करते हैं, फिर नीचे आज्ञा चक्र में, फिर नीचे नासिकाग्र आज्ञा चक्र में, ऐसे ऊपर नीचे 3 से 5 बार। अभी पाँव के लिए सूक्ष्म व्यायाम करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ऐसे अंदर की ओर अंगूठा, बाहर की ओर करांगुली, पाँव की अंदर की ओर अंगूठा, बाहर की ओर करांगुली, ऐसे फिर दोनों पाँव को हम सूक्ष्म व्यायाम के माध्यम से तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाने की चेष्टा करते हैं, प्रयास करते हैं। दोनों पाँव को साथ में जोड़ते हुए टखनों के लिए व्यायाम, सूक्ष्म व्यायाम। अगला अभ्यास एंटी क्लॉकवाइज, फिर और आगे बढ़ जाते हैं, आगे पीछे लेके जाके दोनों पाँव को इस तरह से पूरी ताकत के साथ आगे और पीछे। घुटनों के लिए सूक्ष्म व्यायाम। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो घुटनों में अपने आप ही दर्द शुरू हो जाता है। तो घुटनों को स्वस्थ रखने के लिए ये सूक्ष्म व्यायाम करते रहे और सावधानी बरते कि आप कभी भी खड़ा होकर पानी ना पिए, बैठ के ही पानी पिए, जूस पिए, चाय पिए, लिक्विड पिए, ताकि आपके घुटने मरते दम तक तंदुरुस्त रहे, स्वस्थ रहे। अल्टरनेट अभी दोनों पाँव को ऊपर नीचे कर रहे हैं और फिर अगला अभ्यास ऐसे नीचे प्रेस करते हैं घुटनों को और ढीला छोड़ देते हैं, नीचे प्रेस करते हैं, ढीला छोड़ देते हैं। अपने आप ही वहां पे एक संकुचन और प्रसरण होता है और वहां से शक्ति का निर्माण होता है। आगे चलते हैं, अभी हम करेंगे बटरफ्लाई। तो अभी हम आपसे करवाएंगे 10 आसनों का अभ्यास जो कि आपकी रीढ़ की हड्डी को स्वस्थ और तंदुरुस्त बनाएगा। बड़ी तेज गति से हम आगे जा रहे हैं। आधे आधे मिनट में एक एक आसन हम करने वाले हैं। अभी बैठ के करने वाले आसनों में सर्वप्रथम हम करेंगे वक्रासन। वक्रासन के बाद हम करेंगे उष्ट्रासन, उसके बाद में हम करेंगे अर्धचंद्रासन। तो ये 3 आसन हम बैठ के करने वाले हैं। इसके लिए हम सबसे पहले पोजीशन ले लेते हैं। वक्रासन के लिए फिर से एक बार दोनों पांव सीधे करते हैं, दंडासन में लेके जाते हैं अपने शरीर को। दंडासन में लेके जाने के बाद दाहिना पांव पास में लेके आते हैं। हर एक आसन का एक गौण लाभ होता है और एक मुख्य लाभ होता है। तो वक्रासन में जो है ये रीढ़ की हड्डी के लिए मुख्य रूप से लाभदायी होता है और पेट को कम करने के लिए भी ये लाभ करता है गौण रूप से। तो मुख्य फलदायी वक्रासन रीढ़ के लिए होता है। देखते हुए करेक्ट तरीके से करने का प्रयास करें। हमारे पास टाइम कम है, इसलिए डिटेल एक्सप्लेनेशन बार बार देना मुश्किल हो जाता है। आप देखते रहिए, करते रहिए, सुनते रहिए। आपकी एकाग्र अवस्था अगर ऊंची है तो आप देख पाओगे, कर पाओगे और सही तरीके से उसको आचरण में ला पाओगे। विपरीत दिशा से यही अभ्यास, दाहिना पांव सीधा, बायां पांव पास में, दाहिना हाथ ऊपर, दाहिना हाथ ऊपर से, फिर दाहिने घुटने के ऊपर, बाएं घुटने को लांघते हुए दाहिनी तरफ से हम बाई तरफ अभी पीछे देख रहे हैं। एक ही अभ्यास 10 से 20 सेकंड तक हम कर रहे हैं। यह अभ्यास जो होता है शांति के साथ करना होता है, मैं समझ सकता हूँ, मगर समय की मर्यादा के लिए हम थोड़ी सी गति को आज बढ़ाए हैं। और अगला अभ्यास हम करेंगे उष्ट्रासन और उसके बाद में अर्धचंद्रासन। रीढ़ की हड्डी के लिए, रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाने के लिए। और दिन भर कुर्सी में बैठे बैठे स्क्रीन के सामने ऐसे झुक जाते हैं और फिर रीढ़ की हड्डी में पेन होना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए अगला अभ्यास
उष्ट्रासन, दोनों पांव ऐसे पीछे लेके जाते हैं, इसको बोलते हैं वज्रासन। वज्रासन की पोजीशन में आने के बाद हम करेंगे उष्ट्रासन। उष्ट्रासन को ठीक से करने के लिए ऐसे दो तरीके होते हैं, एक तो सीधा आप ऐसे बैठ जाए और फिर बाद में ऐसे दोनों हाथों को दोनों टखनों के ऊपर रखते हुए फिर सामने से उठ जाए, एक आसान तरीका है। इसके बाद में दूसरा एक तरीका है कि पहले घुटनों के बल खड़े हो जाए और फिर बाद में एक हाथ को ऊपर से पीछे लेके जाए और फिर पीछे देखने का प्रयास करें। जैसे आपको अनुकूल लगे आप उस हिसाब से इस आसन को कर सकते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। रीढ़ की हड्डी, लोअर बैक, अपर बैक, मिडिल बैक, पूरे रीढ़ की हड्डी को तंदुरुस्त रखता है। इसके बाद में हम करेंगे अर्धचंद्रासन का अभ्यास। दोनों हाथों को ऐसे ठीक से मोड़ते हैं और छाती के पास रखते हैं, पेट के और छाती के ठीक बीच में, और फिर पीछे जुड़ जाते हैं। हाताची घडी घालून पुन्हा एकदा अभ्यास करूया। अर्धचंद्रासन कमीत कमी 5 ते 10 सेकंद थांबण्याचा प्रयत्न। 1 2 3 4 5 विश्राम। पाठी चक्रासाठी जे काही 10 आसन आपण करणार आहोत त्याच्यातले पहिले 3 आसन आपले पूर्ण झालेले आहेत। आता आपण पुढचे अभ्यास घेणार आहोत। मर्कटासन। मर्कटासन हे पाठीच्या आजारांसाठी सर्वोत्तम आसन समजलं जातं। यासाठी आपल्याला पाठीवरती झोपायचं आहे। पाठीवरती झोपून काही आसन, त्यानंतर पोटावरती झोपून काही आसन। तर अगोदर आपण पाठीवर जे आसन आपल्याला झोपून करायचे आहेत ते पूर्ण करूया। पाठीवरती झोपायचं आहे आणि दोन्ही पाय जोडायचे, दोन्ही हात खांद्याच्या सरळ रेषेमध्ये, दोन्ही पाय गुडघ्यातून दुमडायचे। दुमडल्यानंतर उजवा कान जमिनीला टेकवायचा आहे। दाहिना कान जमीन को स्पर्श करते हुए, दाहिना कान जमीन को स्पर्श करते हुए बाई तरफ घुटनों को लेके जाएंगे और उस अवस्था में थोड़ी देर रुकेंगे। फिर बाद में विपरीत दिशा से पांव विपरीत दिशा में जाएंगे, गर्दन भी विपरीत दिशा में। बायां कान जमीन को स्पर्श करने का प्रयास करेंगे, दाहिनी तरफ घुटने लेके जाएंगे। दाहिना घुटना जमीन के ऊपर, दाहिने घुटने के ऊपर बायां घुटना, दाहिने टखने के ऊपर बायां टखना, टखने के ऊपर टखना, घुटने के ऊपर घुटना। उस अवस्था में कुछ देर रुकने के बाद फिर अगला अभ्यास करेंगे, मर्कटासन अभ्यास द्वितीय। दोनों पांव में थोड़ा सा फासला रखते हुए दाहिना कान जमीन को स्पर्श करेंगे, फिर बाई तरफ घुटनों को लेके जाएंगे। बायां घुटना जमीन के ऊपर, बाएं टखने के ऊपर दाहिना घुटना रखते हुए हम करेंगे मर्कटासन का द्वितीय अभ्यास। बड़ी एकाग्रता के साथ, उच्च एकाग्रता होनी चाहिए और मन में अभिप्सा होनी चाहिए कि जो मैं सीखना चाहता हूं वो पूरी तरह से ग्रहण कर सकूं। इस भाव के साथ, इस संकल्प के साथ जब आप करेंगे, देखेंगे, तभी आप सफल हो पाएंगे। विपरीत दिशा से यही अभ्यास, बायां कान जमीन को स्पर्श कर रहा है, दाहिना घुटना जमीन को स्पर्श कर रहा है, दाहिने टखने के ऊपर बाएं पांव का घुटना रखने का प्रयास करना है। मर्कटासन द्वितीय अभ्यास पूरा हो चुका है। ऐसे ही हमें करना है मर्कटासन का तीसरा अभ्यास। दोनों पांव सीधे, दोनों हाथ सीधे करने की सरल रेखा में पहले हमने करना है दाहिना पांव उठाने का अभ्यास और दाहिना कान जमीन को स्पर्श करने का प्रयास। जिधर गर्दन उसके विपरीत दिशा में, विरुद्ध दिशा में पांव होना चाहिए और अपने हाथ की तर्जनी और घुटने से, तर्जनी और अंगूठे से हमें अपने पांव का अंगूठा पकड़ना है। विपरीत दिशा से यही अभ्यास। बायां कान जमीन को स्पर्श करे, दाहिना पांव नीचे रखते हुए बायां पांव को उठाएंगे, बाएं पांव का अंगूठा दाहिने हाथ के अंगूठे में पकड़ते हैं, अंगूठा और तर्जनी में पकड़ते हैं। ऐसे हमें करना है
मर्कटासन का तृतीय अभ्यास। अभी मर्कटासन का सबसे अच्छा जो अभ्यास होता है, ये हमें लाभ देता है रीढ़ की हड्डी की सारी बीमारियां दूर करने के लिए। अभी जो अगले आसन हम करने वाले हैं वो है शलभासन, बाद में मकरासन, भुजंगासन। तो पहले हम करेंगे मकरासन का अभ्यास। पेट के बल लेट जाते हैं। अभी पेट के बल लेटने के बाद दोनों हाथों का स्टैंड बनाते हैं। दोनों हाथों का स्टैंड बनाने के बाद एक एक पांव से हम हमारे सीट को, हमारी एड़ी टच करने का प्रयास करें। अगर एड़ी टच नहीं होती है तो समझ लो आपका स्ट्रक्चर खराब हो चुका है। तो ये स्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए आपको करना पड़ेगा योगाभ्यास, सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम, आसन। दोनों पाँव को एक साथ लेते हैं। कम से कम 5 से 10 बार कर लेते हैं। और फिर अगला अभ्यास मकर आसन के बाद भुजंगासन। दोनों हाथ छाती के साइड में, एक छाती के बगल में लेके जाते हैं दोनों हाथों को, और श्वासों को भरते हुए ऊपर उठ जाते हैं। कोने हल्की सी मुड़ी हुई, श्वास अंदर, दृष्टि आकाश की ओर। जीना यहाँ, मरना यहाँ, जाना जहाँ, देखना वहां। जहां जाना है उधर देखो। श्वासों को छोड़ते हुए नीचे, फिर बाया हाथ जमीन के ऊपर, उसके ऊपर देना हाथ, और फिर श्वासों के अंदर भरने के साथ दोनों को नियंत्रित करते हुए ऊपर की ओर, श्वासों को छोड़ते हुए नीचे। फिर दाहिना हाथ नीचे और उसके ऊपर बाया हाथ, हाथ बदल करते हैं। उसके ऊपर थोड़ी, थोड़ी का मतलब चिन, मराठी में हनुवटी। उजवा हात खाली त्याच्यावरती डावा हात, त्याच्यावरती हनुवटी. दोन्ही हात पोटातून सरळ करायचे. श्वास घेत घेत दोन्ही पोकळी सरळ. काही सेकंद त्या अवस्थेवर थांबायचंय. 5 ते 10 सेकंद किमान. हळूहळू हळू वाढवत जायचं आहे. ज्यांना पाठदुखीचे खूप गंभीर आजार आहेत त्यांनी हाचा अभ्यास अर्धा ते 1 मिनिट, जास्तीत जास्त 2 मिनिटापर्यंत करायला काही हरकत नाही. हळूहळू श्वास सोडत खाली. त्यानंतर आपण करणार आहोत धनुरासन। दोनों पांव के टखनों को पकड़ते हुए, श्वास भरते हुए दोनों साइड से शरीर को उठा लेते हैं। श्वासों को छोड़ते हुए नीचे। अभी हम करेंगे शलभासन का अभ्यास। दाहिना हाथ दाहिनी जंघा के नीचे, बाया हाथ बाई जंघा के नीचे, एक एक पांव को उठाएंगे। अर्ध शलभासन दोनों में के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। श्वासों को छोड़ते हुए नीचे, फिर बाया पांव, और फिर बाया पांव नीचे लेके आते हैं। दोनों पांव ऊपर उठाते हैं। फिर दोनों हाथ कमर के ऊपर, श्वास भरते हुए सामने से थोड़ी उठाएंगे, पीछे से दोनों पांव उठाएंगे। पूर्ण शलभासन। राउंड। इसके बाद में हम करेंगे अगला अभ्यास, शवासन का अभ्यास। दोनों पांव में फासला रखते हुए हाथ के तिली आकाश की ओर, आंखें बंद रखते हैं और सहजता से श्वास आ रहा है, सहजता से जा रहा है। और अपना ध्यान लेके जाते हैं पांव के अंगूठे की तरफ। पांव के अंगूठे से सिर के सिरे तक एक एक अंग को शांत, शिथिल, रिलैक्स और तनाव से मुक्त करेंगे।
सबका प्यारा आसन शवासन, जिस आसन को हम जन्म के पहले से ही जानते हैं, जन्म के पहले से ही हम इसमें निष्णात है, एक्सपर्ट है, ऐसे आसन को हम करेंगे। बड़ा प्यारा आसन शवासन। पाँव का अंगूठा, दोनों पाँव के अंगूठे रिलैक्स, तनाव से मुक्त, रोग से मुक्त, वैसे ही सारी उंगलियां, पाँव के तलवे, टखने, एड़ियां, घुटने, पिंडिया, जंघाएं, कमर शांत शिथिल रिलैक्स, तनाव से मुक्त हो रही है, रोग से मुक्त, वेदना से मुक्त, पीड़ा से मुक्त हो रही है, हो चुकी है। इस भाव के साथ फिर आगे बढ़ जाते हैं। पेड़ू भाग पेट का, फिर पेट का भाग, फिर छाती, शांत शिथिल रिलैक्स, तनाव से मुक्त, दोनों कंधे, रीढ़ की हड्डी, पीठ का पूरा भाग, गर्दन, गला शांत शिथिल रिलैक्स, तनाव से मुक्त हो रहा है, हो चुका है। और फिर बाद में दोनों हाथ के दंड, कोहनियों और कलाइयों के बीच वाला हाथ का हिस्सा, दोनों हाथ के अंगूठे, दोनों हाथ की हथेलियां, दोनों हाथ की सारी उंगलियां शांत शिथिल रिलैक्स, तनाव से मुक्त, रोग और पीड़ा से मुक्त हो रहे हैं, हो चुके हैं। इस भाव के साथ थोड़ी कान, गाल, नासिका, ओठ, दांत, जिह्वा, छोटी जिह्वा, आंखें, आंखों की पुतलियां, और फिर माथा, दोनों भौहें, सिर शांत शिथिल रिलैक्स, तनाव से मुक्त हो रहे हैं, हो चुके हैं। संपूर्ण शरीर में एक दिव्य परिवर्तन हो रहा है। व्यायाम, प्राणायाम, आसन, योग के आचरण से हमारा जीवन दिव्य हो रहा है, हो चुका है। मेरे संपूर्ण शरीर, मन, बुद्धि, विचारों में ईश्वरीय शक्ति, स्फूर्ति, उत्साह, प्रेरणा, कृपा, अनुग्रह, चैतन्य, ऊर्जा, ब्रह्मानंद के साथ दिव्य अमृतमय ईश्वरीय गुण जैसे कि धृति, स्मृति, प्रतिभा, पुरुषार्थ, पराक्रम, सत्यनिष्ठा, कृतज्ञता, नेतृत्व, वक्तृत्व, कर्तृत्व, अपराधिक शुचिता, चारित्रिक शुचिता, आर्थिक शुचिता, दिव्य अमृतमय ईश्वरीय इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, सामर्थ्य, संकल्प पूर्ण रूप से ओतप्रोत होकर प्रकट हो रहे हैं, हो चुके हैं। इस दिव्य भाव के साथ ऐसी धारणा करें, मेरा संपूर्ण शरीर, मन, बुद्धि, विचार, जीवन का प्रत्येक क्षण का प्रत्येक भाग और मेरे अस्तित्व के प्रत्येक कण का प्रत्येक भाग दिव्य अमृतमय ईश्वरीय शक्ति का संवाहक हो रहा है, हो चुका है। मैं ईश्वर का यंत्र बन चुका हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर हमें अपना यंत्र बनाकर हमसे वो दिव्य पवित्र ईश्वरीय कार्य कराओ और हमारा जीवन सार्थक सफल बनाओ। इस दिव्य भाव के साथ ईश्वरीय सत्ता, ऋषि सत्ता, गुरु सत्ता, भागवत सत्ता को समर्पित होते हुए अपने आप के वैयक्तिक सर्वांगीण संपूर्ण विकास के प्रति जो जो हमारे कर्तव्य है, कर्म है, उसके लिए समर्पित होते हुए शवासन को पूर्ण करते हैं। दोनों हाथ की हथेलियां ऊपर की ओर उठाते हैं, दोनों हाथों को रगड़ते हैं, हाथों की गर्म गर्म उष्मा दोनों आंखों के ऊपर रखते हैं, हाथ के अंजलि के अंदर आंखें खोलते हैं और फिर बाई करवट लेते हुए उठ जाएंगे और आपको कुछ अभी घरेलू उपचार बोलेंगे और कुछ औषधियां भी बोलेंगे, उनको नोट करते हैं और फिर आज के सत्र को विराम देंगे। सबसे पहले रीढ़ की हड्डी, आज संपूर्ण शरीर में जो भी हड्डियां होती है वो स्वस्थ, तंदुरुस्त, मजबूत रहने के लिए
आपको होती है कैल्शियम की आवश्यकता। और कैल्शियम दूध में तो होता ही है, और जिनको दूध हजम नहीं हो पाता उनके लिए एक अच्छा विकल्प है, वो है एलोवेरा। एलोवेरा में काफी मात्रा में कैल्शियम होता है, उसका सेवन आप खाली पेट सुबह कर सकते हैं। आप आपके घर में पौधे भी लगा सकते हैं उसमें। एलोवेरा जो होता है उसका ऊपर का छिलका निकाल के अंदर का जो गर होता है उसको आप खा सकते हैं सुबह सुबह खाली पेट। ये भी अच्छा होता है। आप इसको सब्जी में भी उपयोग में ला सकते हैं, साथ ही साथ इसकी आप अलग अलग व्यंजनों के माध्यम से उपयोग करके कैल्शियम की मात्रा बढ़ा सकते हैं। बाद में होता है जिनके शरीर में काफी दर्द होते रहता है, जॉइंट पेन होते रहते हैं, अलग अलग टाइप के वात रोग से वो त्रस्त और व्यस्त होते हैं, काम नहीं कर पाते, व्याधि में व्यस्त हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए फिर होता है त्रयोदशांग गुल। त्रयोदशांग की गोली जो होती है, आप सुबह शाम खाने के बाद एक एक या तो दो दो ले सकते हैं। अपने क्षमता के अनुसार आप इसका सेवन करें। छोटे बच्चे तो एक एक, बड़े हैं तो लगभग लगभग ज्यादा से ज्यादा दो गोलियां आप खाने के बाद ले सकते हैं। और साथ ही साथ पीड़ांतक वटी, पीड़ांतक मलम, पीड़ांतक तेल, इसका उपयोग करते हुए आप शरीर को मसाज दे सकते हैं। इससे आपके शरीर में जो वेदना होती है, पीड़ा होती है, इससे काफी मात्रा में आपको लाभ मिलता है, क्योंकि शरीर से वात विकारों को नष्ट करने के लिए पीड़ांतक मलम, पीड़ांतक पट्टी और पीड़ांतक तेल आपको मदद करेगा। साथ ही साथ वात विकार होने की वजह से ही रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम होती है, और गलत बैठने का तरीका जो होता है इससे भी आपको गर्दन की प्रॉब्लम होती है। गलत तरीके से सोना, गलत तरीके से बैठना, गलत तरीके से चीजों को उठाना, जो अधिक मात्रा में भारीयुक्त होती है, जड़ वस्तुएं होती है, जैसे कि 10-20 किलो 50 किलो हो गई, ऐसी वस्तुओं को उठाते समय गलत तरीके से उठाना, इससे भी रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम होती है। तो आपको इसमें सावधानी बरतनी है और सही तरीके से इसको सीखना है और करना है। जैसे कि ये पहले कुछ सेशन में मैंने कैसे सोना होता है, कैसे बैठना होता है, ये भी सिखाया था। और इसके लिए मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, और अगले 1 से 1.5 मिनट में मेरे शिविर को मैं आज के लिए समापन की ओर लेके जाता हूँ। आंखों के लिए आप पंचकर्म चिकित्सा कर सकते हैं, वो होता है नेत्र तर्पण। नेत्र तर्पण करके आप अपने आंखों को स्वस्थ रख सकते हैं, और टीवी, मोबाइल और लैपटॉप की स्क्रीन से, डेस्कटॉप की स्क्रीन से होने वाले घातक परिणामों को बचा सकते हैं नेत्र तर्पण के द्वारा। साथ ही साथ सुबह जब आप दातुन करते हैं, ब्रश करते हैं, तो मुंह में पानी भरते हैं ऐसे, और हाथों से छींटे मारते हैं पानी के। बंद बंद आंखें खोलते हैं, आंखें खोलना बंद करना, खोलना बंद करना, मुंह में पानी भर के आप आंखों के ऊपर छींटे मार सकते हैं। आंखों को बंद चालू करें, बंद करें, खोले और छींटे मारते रहे। तो ये भी एक अच्छा तरीका है आंखों को स्वस्थ रखने का। और सीधे बैठ के काम करने का ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें। ये आदत लगने में काफी टाइम लगता है, आपको जागरूक रहना है और संकल्प के साथ आपको जागृति लानी है। मुझे अपने स्वास्थ्य के प्रति 100% स्वस्थ बनना है। इस भाव के साथ जब आप करोगे तो अच्छे से कर पाओगे। जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, उनके लिए बहुत अच्छा एक उपाय हम बोलने जा रहे हैं, वो है नस्य। नस्य मतलब नासिका में सोते समय 2-2, 4-4 बूंद आप गाय का घी थोड़ा सा पतला करके, हल्का सा गर्म करके उसको डाल सकते हैं। इससे माइग्रेन की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, और मन की एकाग्रता बढ़ती है, शांति से नींद आती है, और मेमोरी भी बढ़ती है, मन की एकाग्रता भी बढ़ती है। तो ये बहुत अच्छा उपाय है। ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए भी काम आता है अप्रत्यक्ष रूप से, तो इसका लाभ आप जरूर लें। साथ ही साथ आप हफ्ते 10 दिन में तेल से मसाज करके गर्म पानी से स्नान करें, अभ्यंग जिसे कहा जाता है, और उससे भी आपको रीढ़ की हड्डी के विकारों में जरूर जरूर लाभ मिलेगा।
इसी के साथ हम आज का सत्र समापन करते हैं प्रार्थना के साथ। ओम देव शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। माता पिता, माताओं की माता धरणी माता, सर्वंतर्यामी परमपिता परमेश्वर, सभी गुरुजन और आप सबको वंदन प्रणाम। ओम। करें योग, रहे निरोग, स्वदेशी अपनाएंगे, देश को बचाएंगे। ओम। अभिषेक जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपना कंक्लूडिंग वर्ड्स के साथ आगे चले, समापन करें। अभिषेक जी। Thank you, Pritesh ji. It was really a wonderful session from your side, and we have learned so many exercises, so many asanas to for living healthy life. So I hope all members have noted down. There's one question from the member that please suggest suitable exercises for strength of bones, and please suggest diet also, which fruit, which vegetables they should eat. ओके, तो सबसे बड़ी बात यह है कि हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए, जैसे कि मैंने कहा कि एलोवेरा का सेवन करें, दूध का सेवन करें। दूध नहीं हजम होता है तो एलोवेरा जरूर सेवन कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर एक्सरसाइज की आप बात करें तो दंड बैठक का जो अभ्यास होता है, सूर्य नमस्कार का जो अभ्यास होता है, वो महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि मैं अलग अलग शिविरों में बोलते रहता हूँ कि 5 टाइप के फिटनेस होते हैं: शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आत्मिक और भावनिक। तो शारीरिक फिटनेस में एक फिटनेस होता है स्ट्रेंथ, मतलब शरीर में ताकत का होना। तो शरीर में ताकत को अगर बढ़ाना है तो आपको व्यायाम करना पड़ेगा। आसनों से शरीर में दृढ़ता आती है और व्यायाम से शक्ति आती है। तो आपको आसनों का अभ्यास शरीर में दृढ़ता लाने के लिए करना होता है और व्यायाम का अभ्यास शरीर में शक्ति लाने के लिए करना होता है। तो जब हम व्यायाम करते हैं तो शरीर को तेज गति से हिलाते हैं और शरीर के शक्तियों का, स्नायु मंडल का विकास कराने के लिए अलग अलग एंगल से उसको प्रेरित करते हैं। तो शरीर की मजबूती के लिए व्यायाम जो होता है उसमें सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, दंड बैठक कर सकते हैं। हमारे 8 सेशन के अंदर दंड बैठक का अभ्यास कहाँ फिट हो सकता है उसका मैं अभ्यास करूंगा, और उसका भी थोड़ा सा 10-20 मिनट अगर डेमोन्स्ट्रेशन दे सका आने वाले 4 सेशन में तो उसका भी मेरा प्रयास रहेगा। और कुछ आपने कहा था इसके बारे में? वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। वेजिटेबल एंड फ्रूट्स का जो सेवन करना होता है उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि वेजिटेबल जो हरी सब्जियां होती है वो फाइब्रस होती है। उसमें कैल्शियम की मात्रा नहीं हो सकती है ऐसे नहीं हम बोल सकते, मगर उसका सबसे अच्छा उपयोग होता है हीमोग्लोबिन को बढ़ाना, पेट को साफ रखना और रक्त को स्वच्छ रखना। इसके लिए उसका उपयोग होता है। इसके लिए कैल्शियम का अगर आपको सेवन बढ़ाना है तो उसके लिए आपको चौलाई खानी पडेगी। मराठीमध्ये आम्ही त्याला राजगिरा म्हणतो, त्याच्यामध्ये सुद्धा उत्तम कॅल्शियम असतं। त्याचबरोबरीने तुम्ही जर औषधांमध्ये म्हणाल तर लाक्षादी गुग्गुळ नावाचं एक गोळी असते, त्याच्याने सुद्धा कॅल्शियम पटापट भरून निघतं आणि जर काही फ्रॅक्चर्स असतील ते सुद्धा चमत्कारिक पद्धतीने बरे होतात लाक्षादी गुग्गुळ। तर ॲलोवेरा हा एक सर्वांना चालण्यासारखा ऑप्शन आहे। लाक्षादी गुग्गुळ हे आपण एक्स्ट्रीम केस मध्ये देतो, तर त्याचा सुद्धा आपण फायदा घेऊ शकतो। आणि कॅल्शियम साठी प्रत्येक भाजीमध्ये कमी अधिक प्रमाणात कॅल्शियम असतं, परंतु मी सजेस्ट करेल की तुम्ही त्याच्याऐवजी फ्रुट्सच्या ऐवजी हे जे फ्रुट्स असतात त्याच्यामध्ये सीताफळामध्ये सुद्धा कॅल्शियम असतं आणि त्याचबरोबर दिसायला श्वेत दिसणारे जे काही फळ असतात सीताफळासारखे त्याच्यामध्ये कॅल्शियम चांगल्या मात्रेमध्ये असतं, जसं की रामफळामध्ये सुद्धा कमी अधिक प्रमाणात कॅल्शियम असतंच। बोलतो अभिषेक जी। Yes, Pritesh ji,
Thank you so much. We look forward to hear from you over the next 2 weekends. That is all the remaining 4 sessions. Dear members, thank you for joining us. I request all of you to please stay tuned. Please practice whatever you have learned at your home and take the benefit of the yoga. So with this, we conclude today's session. Kare rog, kare yog, rahe nirog. Yes. Thank you.